there's no evidence coming in from the other side. What do you think is there? Are they trying to bluff their people? Are they trying to build some kind of a propaganda for the anger that domestically is there in Pakistan? And secondly, related question, you mentioned Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba terrorists. The brother of Maulana Masood Azhar, Rauf Asghar, who was killed. Pakistan DGISPR is trying to build a propaganda where he's saying that Lashkar-e-Toiba, Rauf from Lashkar-e-Toiba was at the entire funeral, but he's saying that he's alive, and they're trying to confuse the people because the two names are similar. The Jaish chief, who is the brother of Maulana Masood Azhar, and the Lashkar guy who was with the Pakistan army at the funeral. So could you clarify what has really happened? Because there is a lot of propaganda and information warfare happening from the Pakistan side. Thank you. I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job. We have done what we're expected to do, and that is it. I'll come this side, 249. सर, मैं पूनम पांडे हूँ नवभारत टाइम्स से। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया था कि दिस इज़ न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया, और किस स्तर की ये वॉर थी? अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है, और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का warfare था, and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. Ladies and gentlemen, the last question, 161. Hi, sir. Thank you, sir. Snesh Philip here from The Print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you.
Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you so much. As I said yesterday, as I said earlier and yesterday, it is difficult to take everybody's questions, and the DGMers have to reach somewhere right now. So thank you for coming. Please send in your questions on paper. We will definitely answer them. Thank you. आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। 9 आतंकी कैंप्स तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंची है। जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ जो हुई उससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और सेना ने बता दिया कि हम अभी भी मिशन के लिए तैयार हैं, किसी भी तरह के मिशन के लिए तैयार हैं। आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो कामयाब रहा। हमारे मिलिट्री बेस ऑपरेशनल हैं, पूरी तरह से स्टैंड बाय मोड पर है। जरूरत पड़ने पर अगले मिशन के लिए हम पूरी ताकत के साथ में तैयार हैं। आतंकी हरकतों को सहन नहीं किया जाएगा। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारत पहले भी अपनाता रहा है और आतंक पर ही गहरी चोट के लिए पाकिस्तान पर ये स्ट्राइक की गई है, जिसके बाद पाकिस्तान न सिर्फ घुटनों पर आया बल्कि सीज फायर की पेशकश भी पाकिस्तान की ओर से की गई। सेना ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिसमें सेना के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल ना शेयर की जा रही हो। ये देश को बताया जा रहा है कि अपनी सेना पर पूरा भरोसा रखें और जो अब तक की कार्रवाई है वो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ गहरी चोट है और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी, यानी कि अभी भी मिलिट्री बेस जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। हम किसी भी तरह के मिशन के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर अगले मिशन की तैयारी है, अगले मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तीनों सेनाओं के डीजीएमओ के जरिए ये जानकारी शेयर की गई है। पाकिस्तान के एयरफील्ड्स की क्या दुर्दशा हुई है ये हर तरीके से तस्वीरों में, चाहे वो वीडियोस हो या सैटेलाइट तस्वीरें हो, ये बताया गया है और उसके सबूत भी दिए गए हैं। पाकिस्तान भले ही कितना भी झूठ बोल ले, कितने भी झूठे प्रोपेगेंडा रचा ले, बता दे, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान की तरफ से जवाब दिया गया है और ऐसा जवाब दिया गया है जिससे पाकिस्तान न सिर्फ बैकफुट पर है बल्कि ये जो नुकसान अभी हुआ है उसे भरपाई करने के लिए सालों साल का इंतजार अभी पाकिस्तान को करना होगा। पाकिस्तान के हमलों की हर कोशिश नाकाम की है हमारी सेना ने। हमारे जवानों ने बहादुरी से पाकिस्तान को जवाब दिया है। आम लोगों पर आतंकी लगातार हमला कर रहे थे, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन जरूरी था भी। पाकिस्तान ने यह भी झूठ बोला कि दिल्ली के साथ बड़े शहरों पर हमला किया है और हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, हमारे एयरबेस तबाह करने का दावा किया है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद करने का दावा किया। लेकिन पाकिस्तान अपने ही झूठ में फंस गया है, पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि पाकिस्तान में हुआ बड़ा नुकसान और अब सेना के अधिकारियों के जरिए भी ये बता दिया गया कि हमारे जो मिलिट्री बेस हैं वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं और अगले मिशन के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार। पाकिस्तानी ड्रोन भी हमने नष्ट किए हैं, पाकिस्तानी मिसाइलों को भी हमने न्यूट्रलाइज किया है और आगे भी ये होगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत होती है तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन है। मजबूती से काम किया है और हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और आगे भी आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मेरे सीनियर कुलीग, सीनियर एडिटर संजय शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। संजय, एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया गया कि पाकिस्तान की दुर्दशा हुई है जो हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई उसमें, और आगे भी किसी भी तरह के मिशन के लिए तैयार हैं। यानी कि फिर से दोहरा दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए, इस समय सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर मैं आपको दे दूं कि भारत के तीनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, तीनों सेनाओं के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन यहां से निकल चुके हैं। 5 बजे, ठीक शाम को 5 बजे पाकिस्तान के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से बात होगी, सीज फायर पर बात होगी। लेकिन उसके पहले तीनों की तीनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशन एक घोषणा करके गए। वो घोषणा यही है जिसकी बात आप कर रही थी कि तीनों सेनाएं तैयार हैं।
सभी के मिलिट्री बेस एकदम तैयार है, रेडी है, हाई अलर्ट पर है, किसी भी तरह की एक्शन लेने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी तरीके का बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सरकार की सेनाएं तैयार है। और यह भी संदेश दिया कि किस तरीके का उन्होंने व्यू रचना रची थी, किस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तैयार किया हुआ है, यानी किसी भी तरीके का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ड्रोन, मिसाइल और फाइटर प्लेन्स, ये सबकी सब इन्होंने घुसने की काफी बड़ी भारी कोशिशें की थी, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था, इतना तगड़ा था, इस तरह का चक्रव्यूह बनाया गया था कि किसी भी तरीके की ना मिसाइल भारत के भीतर पहुंच पाई, ना फाइटर प्लेन भीतर पहुंच पाया। कई सारी कोशिशें की पाकिस्तान ने 9 तारीख, 10 तारीख, 8 तारीख, इन सब की रातों में कई सारी कोशिशें हुई भारत की सीमा के भीतर घुसने की, लेकिन सारी की सारी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया गया। भारत के सभी एयरफील्ड, सभी एयरबेस, मिलिट्री बेसेस सभी तैयार है, रेडी हैं। अगले आदेश के लिए सरकार की तरफ से जैसे ही हरी झंडी मिलती है फिर से अटैक कर सकती है तीनों सेना। ये बड़ा संदेश आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। ये संदेश दे दिया गया कि अगर कोई भी पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो अलग अलग एयरबेस हैं, कैसे उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया, तमाम वीडियोस तो थे ही, लेकिन फिर सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए उनका सबूत भी सामने रख दिया गया। संजय, जब पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर पर बात बनी, हालांकि कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा भी, आज फिर से जो सेकेंड फेज की बातचीत है वो होनी है, तमाम शर्तों पर भी तो बात होगी। साथ ही भारत ने शर्तों के साथ ही ये सीज फायर माना है, क्योंकि कूटनीतिक फैसले जो भारत ने लिए थे वो तो अभी भी जस के तस हैं, कोई बदलाव उनमें नहीं हुआ। देखिए, जिसको हम नाम दे रहे हैं सीज फायर, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सीज फायर नहीं है, एक तरह की अलिखित, यानी कि इसको लिखित दस्तावेज नहीं है, अलिखित एक तरह से सहमति बनाई गई है कि कोई फायर नहीं करेगा। अगर फायर करेंगे तो फिर भारत की तरफ से जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया कि भारत आप घर गोली चलाएंगे तो भारत की तरफ से बम चलाया जाएगा। तो ये बड़ी धमकी दी गई है पाकिस्तान को। तो सीज फायर अलिखित है, जिसका कोई रिटर्न दस्तावेज नहीं है, और साथ ही साथ अनकंडीशनल है। भारत की कंडीशन पे सीज फायर हुआ है, तो पाकिस्तान जो भी शर्तें मांगना चाहता है या मांग रहा है भारत से कि उसका सिंधु जल का पानी फिर से भारत छोड़ दे, ट्रेड वापिस चालू कर दे, ये किसी भी तरह का इन शर्तों पर कोई विचार नहीं होगा। भारत ने जो रोक लगाई है वो रोक लगा चुका है भारत, इन पर दोबारा कोई किसी तरह का विचार विमर्श नहीं होगा। और सीज फायर तोड़ना या नहीं तोड़ना गेंद पाकिस्तान के पाले में, पाकिस्तान सीज फायर तोड़ेगा, भारत की तरफ से जवाब मिलेगा। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इस बात को भली भांति जानता है, इसीलिए पाकिस्तान भी सीज फायर नहीं तोड़ रहा है। पाकिस्तान जानता है कि गहरी चोट हो चुकी है, अगर कोई भी हिमाकत अब की तो भारत ऐसा करारा जवाब देगा कि फिर बचा कुचा पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत से झूठ बोले गए हैं संजय, सोशल मीडिया पर लोग बड़े जश्न मना रहे हैं, बड़ी वहां दावे कर रहे हैं कि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन भारत की तरफ से, ये जो सेना की तरफ से रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, लोगों के मन में जो भी डाउट है वो भी क्लियर कर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने किसी हमले में ना तो कामयाब हो पाया है ना हो पाएगा। हमारा सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है और हम न सिर्फ उसके हमले को रोक रहे हैं बल्कि करारा जवाब दे भी रहे हैं और आगे भी दिया जाएगा। बिल्कुल, भारत का जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम था। जिस तरीके की, चाहे हम जमीन की बात करें, वायु की बात करें, चाहे जलमार्ग की बात करें, तीनों पर भारत ने इस तरीके का मुकम्मल कब्जा किया हुआ था कि दुश्मन को घुसने का समय तक नहीं दिया गया। ना एलओसी क्रॉस पर कर पाया पाकिस्तान, ना वायु सीमा क्रॉस कर पाया। जबरदस्त जवाब दिया गया और ये भी कहा गया कि टेक्निकल वार था ये, लेकिन अगला जो वार होगा वो इससे भी अलग होगा, यानी टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बदल रही है। तो आज एयर मार्शल ने ये भी कहा, AK भारती ने, कि ये जो वार था ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल वार था और अगला जो वार होगा वो इससे भी अलग टेक्नोलॉजिकल वार हो सकता है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ में संजय। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है, पाकिस्तान के एक और बड़े झूठ का खुलासा हुआ है, यानी पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान का भारत के एयरफील्ड्स पर अटैक का दावा, जो कि पूरी तरह से झूठा निकला। भारत के सभी एयरफील्ड्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, ये हमारी सेना ने, वायुसेना ने बता दिया। भारत के सभी एयरफील्ड्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं, किसी भी तरीके से कोई हमला पाकिस्तान की ओर से नहीं हुआ है। पाकिस्तान का भारत के एयरफील्ड्स पर अटैक का जो दावा है
वो झूठा निकला। इस झूठ का खुलासा हो गया है। पाकिस्तान ने जो झूठ बोला, जो प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की, वो झूठा साबित हुआ। हमारी सेना ने ब्रीफिंग में बता दिया कि पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ रच रहा है। किसी भी झूठ पर, किसी भी अफवाह पर यकीन नहीं करनी है। साथ ही साथ सेना हर दिन जानकारी ये भी दे रही है कि कैसे पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, हैरानी इस बात की, पाकिस्तान खुद तबाही बर्बादी से घिरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रहा है और झूठे दावे भी कर रहा है। लेकिन कुछ देर पहले का ये अपडेट है, इशाक डार ने ये माना है कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जो उनके एयरबेस हैं वो काफी हद तक तबाह हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, ये इशाक डार ने माना है। यानी नेता एक के बाद एक अब मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि ये बड़ा नुकसान भारत की ओर से हो गया है और आगे भी भारत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में आप कह लीजिए कुछ चुनिंदा नेता या फिर जो आम लोग हैं या फिर असामाजिक तत्व हैं, वो इस तरह के झूठे दावों को सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं, भारत के खिलाफ झूठा ये दावा कर रहे हैं। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, आसमान में हो रहे धमाकों ने हर दिन ये बताया कि कैसे पाकिस्तान ने भारत की तरफ हमले के लिए ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजी, लेकिन हमारे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी हमलों को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि पाकिस्तान को जवाब भी दिया। अब पाकिस्तान का झूठ और झूठ की हद तो देखिए, भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, लेकिन अपने अंदर झांक कर देखे तो ये तबाही तो एक्चुअल में पाकिस्तान के अंदर हुई है। संरचना बिल्कुल जिस तरीके से सबूत दिए गए हैं, जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से बताया गया है कि कैसे कैसे पाकिस्तान में कहां कहां कितनी कितनी तबाही हुई है, चाहे वो उनके फाइटर जेट्स हों, चाहे उनके जो एयरबेसिस हों, उनका क्या हाल है, उस चीज का भी खुलासा जो है वो हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान, दरअसल पाकिस्तान की मजबूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार जो है आगे ही अपना द्वंद्व युद्ध जो है उसका चल रहा है इमरान खान के साथ, इमरान खान की पार्टी के लोगों के साथ, और सेना आगे ही टीटीपी और बीएलए के साथ जो है वो कहीं ना कहीं लगी है, उलझी है। तो ऐसे में पाकिस्तान की सच्चाई जो है अगर दुनिया देखेगी और खासतौर पर पाकिस्तान के लोग देखेंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा, वो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। शायद यही मजबूरी उनकी है कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने भारतीय एयरबेसिस को नुकसान पहुंचाया है, भारतीय फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है, अपना नहीं बता रहे, अपना नहीं मान रहे। और भारत ने साफ कर दिया कि हमारे जितने भी एयरबेसिस हैं वो तमाम में ऑपरेशनल है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ही अगर आप देखें, उधमपुर है, अवंतीपुरा है, श्रीनगर है, जम्मू है, ये तमाम एयरबेसिस जो हैं वो फंक्शनल है। और अभी थोड़ी देर पहले ही अभी जम्मू एयरबेस से जो है वो कुछ जो फ्लाइट थी सेना की वो टेक ऑफ की हैं। तो ये साफ बताता है कि पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत को छुपाने का भरपूर कोशिश जो है वो वहां पे करना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ी इंसल्ट होती है दुनिया में जब उन्हें पता चले कि उनके एयरबेसिस जो हैं वो हिट हुए हैं। अब ये जो आपने कहा कि दुनिया भर में फजीयत होती है, बेइज्जती होती है, पाकिस्तान इस बेइज्जती से डरता कहाँ है? एक के बाद एक वो झूठे दावे करता है, यहाँ तक कि दिल्ली तक को उन्होंने टारगेट करने का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पे भी मैं तमाम देख रही हूँ अजय, कभी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का AI जनरेटेड वीडियो सामने आ जाता है जिसमें उन्हें माफी मांगते हुए, युद्ध में पीछे हटने का दावा करते हुए वीडियो जारी कर दिया जाता है। आगरा का वीडियो में देख रही थी, ताजमहल आग की लपटों से घिरा हुआ है। मतलब पाकिस्तान जो ना करे वो कह रहा है बड़े बड़े शहरों पर इंक्लूडिंग दिल्ली कि हमने अटैक किए हैं और वो अटैक कामयाब भी हुए हैं, बड़ा नुकसान हमने हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय सेना ना सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा खोलकर रख दे रही है बल्कि पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल अगर देखें तो जो सच्चाई इस वक्त भारत ने पाकिस्तान को दिखाई है, अगर उसे पाकिस्तान नहीं मानना चाहता वो उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है। मगर जिस तरीके की हालत पाकिस्तान की हुई है, 12 एयरबेसिस को हिट होना, उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो जाना और पाकिस्तान को इसकी खबर भी नहीं होना, ये बड़ी बातें हैं जो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी नाराज़ पाकिस्तानी सरकार से और सेना से हो सकते हैं। मगर उसी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो पाकिस्तान कर रहा है।
और शायद यही वजह है कि झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। कभी AI वीडियो से कोई बनाकर, कभी और कोई पुराने वीडियोस को दिखाकर जो है वो किया जा रहा है। अब देखिए, आज ही जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कल, तो उन्होंने क्या कहा उसमें देखिए, तो उन्होंने खुद माना कि एक वीडियो पहले एक सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जारी किया गया था, जिसमें कहा गया कि एक भारतीय महिला पायलट जो है उसको उन्होंने अबडक्ट कर लिया है। और मगर जब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास ऐसी कोई भी पायलट नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान इस चीज़ के लिए जाना जाता है, ड्रामेबाजी के लिए, और इसी ड्रामेबाजी के कारण ही आज पाकिस्तान की हालत ये है, अंदरूनी हालत ख़राब हो चुकी है। और दुनिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर जब देख रही है तो उसे समझ आ रही है कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। पाकिस्तान कहां स्टैंड करता है, हिंदुस्तान ने कैसे अपनी ताकत दिखा दी है। अजय, आप रहिए मेरे साथ में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स PIO की नापाक हरकत भी इस बीच सामने आ गई है। ये अगली बड़ी खबर है। भारत में पत्रकारों, नागरिकों को फोन किया जा रहा है। भारतीय व्हाट्सएप नंबर ये 7340921702, इस नंबर से कॉल आ रही है। ऐसे में खुद को भारतीय रक्षा अधिकारी बता रहे हैं ये कॉलर्स, और लोगों को ठगने का काम हो रहा है। आप भी 7340921702 इस नंबर से कॉल बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स हैं। PIO की नापाक हरकत है, और ऐसे में जांच एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। भारत में पत्रकारों और आम नागरिकों को ये कॉल्स आ रहे हैं। भारतीय व्हाट्सएप नंबर है, और यही वो नंबर है जिससे कॉल्स आ रही हैं। ये नंबर अभी नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीन का फोटो आप खींच सकते हैं। इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, अपने करीबियों को भेजिए। प्रोपेगेंडा फैलाने का काम तो पाकिस्तान कर ही रहा है, लेकिन PIO की नापाक हरकत, पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स की नापाक हरकत, पत्रकारों और नागरिकों को फोन कॉल्स जा रहे हैं। अजय, इन फोन कॉल्स के जरिए क्या कहा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब से ये हालात बने थे भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और खासतौर पे पहलगाम हमले के बाद, तो इसी तरह के फ़ोन कॉल जो हैं वो इन नंबरों से आ रहे थे। ये एक नंबर नहीं है, ऐसे कई नंबर हैं, और इन नंबर से कॉल करके कभी डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है उसके बारे में जानना, सेना की मूवमेंट के बारे में जानना, तस्वीरें मंगवाना, वीडियो मंगवाना, इस तरह की कोशिश जो है वो की जा रही थी। तो मगर इंडिया न्यूज़ ये साफ कर रहा है कि ये जो नंबर है जो आपको टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नंबर दरअसल पाकिस्तान का एक नंबर है, जिससे इंटरनेट बेस्ड नंबर हो सकता है, और इसके ज़रिए व्हाट्सएप कॉल करके वो जानकारियां हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ये पूछा जाता है कि आपके एरिया में कोई नुकसान हुआ है क्या, कोई फाइटर जेट आपने गिरा हुआ देखा क्या। तो ये बेसिकली मकसद इनका ये है, जो इंटरनेट वॉरफेयर इस वक्त चल रहा है उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी से बुलवाकर कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो एज ए सबूत अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को बताए, देखिए ये भारत के लोग जो हैं ऐसा कह रहे हैं। आपको बता दूं कि कई मीडिया के क्लिप्स जो हैं पाकिस्तान ने ऐसे ही जो चैनल से आधे काटकर, उनके वॉइस ओवर्स करके, उनकी आवाज़ें बदलकर जो है उसका इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है वो प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है कि देखिए भारत का मीडिया खुद मान रहा है कि वहाँ पर ये हो गया, वहाँ वो हो गया। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान खुद कर रहा है। अब यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत हो रही है, देखिए एक तो होता है कि मिलिट्री एक्शन नजर आए, वो एक्शन पाकिस्तान की तरफ से नजर आया। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा जो लगातार सामने आ रहे हैं, और अब पाकिस्तान की ये नापाक साजिश भी है जिसमें भारत में बैठे हुए पत्रकारों या आम नागरिकों को कॉल की जा रही है। और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो जान लें, ये जो नंबर है, इस नंबर से अगर आपको कॉल आती है तो आपको बिल्कुल ये कॉल रिसीव नहीं करनी है। पत्रकारों को, नागरिकों को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इस नंबर से कॉल करने वाले हैं वो खुद को अधिकारी बता रहे हैं। भारतीय अधिकारी बताकर आपसे आपकी डिटेल ली जा सकती है, क्योंकि जानकारी ऐसी भी थी कि एक तो मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान की तरफ से हुआ जिसका जवाब मुंहतोड़ तरीके से भारत ने दिया, लेकिन फिर दूसरा यह था कि साइबर अटैक पाकिस्तान की ओर से हो सकता है, और जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो भी अलग अलग तरीके से पाकिस्तान या हिंदुस्तान से निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ये नंबर नोट कर लीजिए। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान DGMO के बीच में बातचीत आज शाम 5 बजे होनी है। हालांकि पहले दिन में 12 बजे का टाइम था, लेकिन डिले हो गया है। शाम 5 बजे दोनों देशों के DGMO के बीच में बातचीत होनी है। सीज फायर को लेकर जो बात हुई है ना दोनों देशों के बीच में, वो DGMO स्तर पर ही अब तक हुई है, और अब आगे भी जो सेकंड फेज की बातचीत है वो आज होनी है। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है। DGMO के बीच में ये बातचीत
जिसमें आगे सीज फायर को लेकर बात होगी। जाहिर सी बात है अब डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और इन पॉइंटर्स में होगा क्या, हिंदुस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है आतंकवाद तो बर्दाश्त होगा नहीं, और अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से कोई भी आतंकी गतिविधि करता है, आतंकी हमला करता है, तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध की श्रेणी में माना जाएगा, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये भारत सरकार ने क्लैरिटी के साथ में बता दिया था और उसके बाद में सीज फायर की खबर सामने आई। मेरे सीनियर कुलीग संजय शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर। संजय, शाम 5 बजे डीजीएमओ की बातचीत होगी, लेकिन अब तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने का वक्त है ना, सेकेंड फेज की बातचीत है। देखिए सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन भारत की तरफ से एक बात साफ कर दी गई कि जो प्रतिबंध भारत ने लगाए हैं उनको वापस नहीं लेगा। साथ ही साथ भारत किसी भी तरीके के लिखित समझौते में नहीं पड़ना चाहता, किसी भी रिटर्न डॉक्यूमेंट में नहीं आना चाहता है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये एक तरह की सहमति है। पाकिस्तान ने अगर सीज फायर का वायलेशन किया, एक गोली भी चलाता है, तो फिर उस गोली का जवाब गोले से मिलेगा। तो ये एक तरह से साफ संदेश पाकिस्तान को दिया गया है कि पाकिस्तान चाहे तो सीज फायर तोड़ दे, भारत को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत फिर जवाबी कार्रवाई जो करने वाला है को पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान संजय, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया है। संजय बता रहे हैं कि हिंदुस्तान तो ये पहले कह चुका है साफ, भारत सरकार ने ये साफ क्लियर स्टैंड रखा है कि अब किसी भी तरह से आतंकी हमला होगा तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा भारत के खिलाफ, और इसे एक्ट ऑफ वॉर मानते हुए भारत जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से फ्री रहेगा। साथ ही इस बीच जब सीज फायर का प्रस्ताव रखा गया, भारत ने उस पर हामी जरूर भरी है, लेकिन भारत ने अपने जो कूटनीतिक फैसले पाकिस्तान के खिलाफ किए थे वो जस के तस रखे हैं, उनमें किसी तरह से कोई बदलाव नहीं है। यानी कि सार्क वीजा रद्द वाली बात अभी भी है, सिंधु जल समझौते को लेकर अभी भी कोई बदलाव नहीं है, वो रद्द अभी भी है। साथ ही साथ जो अटारी वाघा बॉर्डर है वो बंद है, साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के कोई जहाज नहीं आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ किसी तरह से कोई आयात निर्यात पाकिस्तान से नहीं भारत कर रहा है। ये सभी वो ऐसे फैसले हैं जिससे पाकिस्तान पर चोट लगी है और ये गहरी चोट है। इस गहरी चोट के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे डीजीएमओ की ये बातचीत होनी है, जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। तो आगे इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, तो रहिए हमारे